Good evening and welcome to the week 7 of the TA session of Structure Analysis 1 taught by Professor Amit Shah. I am Trisha Chakraborty, one of the course teaching assistants. I am a PhD student at the Indian Institute of Science, Bangalore. I'll start with a brief recap. So far, in the first 6 weeks, what we have done is basically analysis of determinant structures. So let us call that phase 1. In week 1, we looked at the types of internal forces, uh, the four kinds of major internal forces: bending moment, shear force, axial force, and torsional moment. Then the common classifications of elements and boundary conditions, that elements can be classified into beam element, frame element, or truss element. And boundary conditions, there can be several, like fixed support, hinge support, roller support, and so on, which are the basic ingredients of structural analysis. And we also briefly looked at structural indeterminacy, which we will again look at now as we move on to indeterminate structures, and bending moment and shear force diagrams. In week 2, we focused on trusses, how we idealize real life trusses into 2D trusses that we can solve on pen and paper, stability of trusses, and solving the member forces in a truss using two methods: method of sections and method of joints. In week 3, we looked at the other type of response of a structure apart from force, which is the displacement or deflection response. That we started with the principle of virtual work, and we looked at the unit load method to determine displacement in trusses. In week 4, we did the same for deflection of beams, and there are several methods. Like for the truss, we only studied one method to find out the nodal displacement, the unit load method. For beams, we studied several methods: the elastic curve equation method, where we write the governing differential equation in terms of moment, and then we integrate it twice to get the deflection as a function of x along the beam. Then moment area method. मैम Yes, हाँ. मैम हिंदी में समझाओ ना। अच्छा अच्छा. हाँ, वीक 4 में पहला इलास्टिक कर्व इक्वेशन मेथड, जहाँ हम डिफरेंशियल इक्वेशन गवर्निंग लिखते हैं बीम का इन टर्म्स ऑफ मोमेंट एज अ फंक्शन ऑफ एक्स. फिर d2y dx² मिल गया तो उसको दो बार इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा y इन टर्म्स ऑफ x. सो द डिफ्लेक्शन along the as a function of x along the beam. मोमेंट एरिया मेथड इज बेसिकली एक सिंप्लीफिकेशन है इसी मेथड पे. इलास्टिक कर्व मेथड इज अ बेसिक वन. उसके ऊपर सिंप्लीफिकेशन करके दो मोमेंट एरिया थ्योरम है, जिसको यूज़ करके हमें जल्दी सोल्यूशन मिल सकता है. और एक होता है कॉन्जुगेट बीम मेथड, विच इज़ ऑल्सो बेसिकली मोमेंट एरिया मेथड. और ये सारे मेथड्स इक्विवेलेंट है, पर अलग वे में फॉर्मुलेट करते हैं हम किसी किसी सिचुएशन में जल्दी सोल्यूशन निकालने के लिए. एंड वीक 6, पिछला वीक हम देखे थे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, द मुलर ब्रेसलॉव प्रिंसिपल, जहाँ क्वालिटेटिव इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम मिलता है. और क्वांटिटेटिव इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड shear force अंडर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोडिंग, लाइक पॉइंट लोड, एक सीरीज ऑफ पॉइंट लोड. जैसे व्हीकल, अगर एक व्हीकल जाएगा तो उसका व्हील्स, उसका एक व्हील सामने है, एक व्हील पीछे है, या किसी ट्रक्स में ऐसे 3-4 रो ऑफ व्हील्स होता है, तो वैसे सीरीज ऑफ पॉइंट लोड एक ब्रिज के ऊपर से सपोज मूव कर रहा है, तो उसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड shear force कहाँ पे होगा, किस सेक्शन पे होगा हमें नहीं पता. मतलब अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द बीम किस पॉइंट पे होगा हमें नहीं पता है. शुरू से हम एज्यूम नहीं कर सकते कि वो पॉइंट लोड बीच में होगा या कहीं. द सीरीज ऑफ पॉइंट लोड्स विल मूव अक्रॉस द बीम, अक्रॉस द ब्रिज. सो वी आइडियलाइज द ब्रिज एज अ बीम और एनी काइंड ऑफ बीम. तो ये इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का मेन मोटिव वही है कि मूविंग लोड के अंडर, लाइव लोड के अंडर किस किस मतलब किस बेंडिंग मोमेंट और shear force के लिए हम डिज़ाइन करेंगे. और अब फेज 2 इज स्टार्टिंग, विच इज़ द एनालिसिस ऑफ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स. उसमें हम पहले देख चुके हैं स्ट्रक्चरल इंडिटर्मिनेसी का कॉन्सेप्ट. उसको हम एक बार रिव्यू करेंगे बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट. पहले ही एक स्ट्रक्चर दिया जाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना है कि वो डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट. डिटर्मिनेट है तो उसको तो बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे पहले देख चुके हैं. बस रिएक्शन फोर्स आ जाएगा सीधा इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, और उसके बाद हम इजीली निकाल सकते हैं. बट इनडिटर्मिनेट है तो कुछ एक्स्ट्रा इक्वेशंस हमें चाहिए होगा. So we introduce two kinds of methods: force methods and displacement methods. दोनों ही indeterminate structure को analyze करने के लिए है. एक मतलब यहाँ पे एक थ्योरम है, मैक्सवेल बेटिस रेसिप्रोकल थ्योरम, जो इट इज़ बेसिकली अगेन अ शॉर्टकट
डिजाइंड ऑन द वर्चुअल ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, उससे कुछ कुछ एमसीक्यू प्रॉब्लम में जल्दी सोल्यूशन मिलता है, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस। एंड हम इसके बाद फोर्स मेथड का फोर्स मेथड्स बहुत सारे होता है, उसमें से एक मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन है जो जो डायरेक्ट एप्लीकेशन है फोर्स मेथड का, तो हम उसको देखेंगे इस लेक्चर में। Structural indeterminacy, that this is the structures that cannot be analyzed using statics or equation of equilibrium only are called indeterminate structures। वो कब होता है जब मतलब कब हम स्टैटिक्स या इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेके उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम 2D में देख रहे हैं तो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। एक एक्स डायरेक्शन में हमें फोर्स बैलेंस करना है, वाई डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करना है और ओवरऑल मोमेंट बैलेंस करना है, तो हमें 3 ही इक्वेशन मिल सकता है। अब किसी स्ट्रक्चर के ऊपर 3 से ज़्यादा रिएक्शन फोर्सेस रहेगा, जैसे अगर एक बीम के दोनों साइड में 2 हिंज सपोर्ट है तो उसका 4 रिएक्शन आ जाएगा, तो उसको हम स्टैटिक से एनालाइज नहीं कर पाएंगे, तब हम उसको इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स बोलेंगे। एंड देन वी विल नीड अदर मटेरियल प्रॉपर्टीज टू सॉल्व दैट सिस्टम, and the degree of indeterminacy is number of unknown reactions minus the number of equations of equilibrium। 2D में हम अभी 2D ही देख रहे हैं और ये पूरा कोर्स में हम सिर्फ 2D ही देखेंगे, इसीलिए नंबर ऑफ इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम इज बाय डिफॉल्ट 3 है हमारा। तो नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस वी आर कंसर्न्ड अबाउट दैट, 3 से ज़्यादा हो गया तो वो इंडिटर्मिनेट सिस्टम है, 3 है तो डिटर्मिनेट है, और 3 से कम है, जैसे एक बीम बस 2 रोलर सपोर्ट पे अगर सपोर्टेड है तो उसका नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस 2 होगा, तो ये डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी नेगेटिव आएगा, उसका मतलब स्ट्रक्चर स्टेबल ही नहीं है। जैसे 2 रोलर है, एक बीम है, उसको मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थोड़ा सा फोर्स दूंगी तो वो मूव कर जाएगा, इट विल बी अनस्टेबल, दैट इज एक टाइप का फोर्स, वो इट कैनॉट रेजिस्ट क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है ही नहीं उसका, तो इट विल मूव along the x-axis and it is an unstable structures। तो unstable structures हम स्टडी नहीं करते क्योंकि they are not allowed। Obviously अगर हम किसी चीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं, stability is the minimum we need। So number of unknown reaction, number of equations of equilibrium के इक्वल होना ही होगा, ज़्यादा भी हो सकता है, और इनफैक्ट रियल लाइफ स्ट्रक्चर्स में हम ऐसे ही बनाते हैं कि रिएक्शंस बहुत ज़्यादा होता है इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम से, क्योंकि ऐसा है कि हम ज़्यादा क्यों देते हैं, उसको रिडंडेंसी बोलते हैं। हम क्यों एक स्ट्रक्चर को रिडंडेंट बनाएंगे, ताकि अगर बाई चांस एक सपोर्ट फेल हो गया तो भी देर विल बी इनफ नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस टू सपोर्ट द स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली सेफ्टी इज आवर फॉरमोस्ट क्राइटेरिया। हम सिविल इंजीनियर्स हम डिज़ाइन करते हैं तो सेफ तो बनाना ही होगा स्ट्रक्चर्स को, तो वी गिव सम सेफ्टी मेजर्स एक्स्ट्रा, की मतलब एक दो चीज़ें फेल हो भी गया फिर भी हम चाहेंगे स्ट्रक्चर खड़ा रहे। ऑब्वियसली वी कैन नॉट मेक इट इनडेफिनेटली इंडिटर्मिनेट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सपोर्ट तो हम नहीं दे सकते, सो दैट इज अ चॉइस वी हैव टू मेक, बट जनरली ऑल स्ट्रक्चर्स वी सी अराउंड अस आर हाईली इंडिटर्मिनेट। ये एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी के दो, there are two kinds of indeterminacy, external and internal। तो external indeterminacy is total number of independent support reactions minus total number of available equations of static equilibrium, जो 3 ही होगा। and internal indeterminacy is total number of internal reactions minus available equations of equilibrium। इसको लेके हम कम कंसर्न है क्योंकि इन जनरल अभी जो मतलब इन टर्म्स ऑफ दिस कोर्स जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक्सटर्नली इंडिटर्मिनेटी ज़्यादातर देंगे, तो सिर्फ ओवरऑल सपोर्ट रिएक्शंस देखना है, और अगर वो 3 से ज़्यादा हुआ तो इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, और ये दोनों को ऐड करके एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी और इंटरनल इंडिटर्मिनेसी ऐड करेंगे तो डिग्री ऑफ स्ट्रक्चरल इंडिटर्मिनेसी आएगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे ये कैंटिलीवर बीम है, इसमें ये एक फिक्स सपोर्ट है, तो फिक्स सपोर्ट कितना रिएक्शन देता है, फिक्स सपोर्ट गिव्स अ वर्टिकल फोर्स, गिव्स अ हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड रेजिस्ट मोमेंट। गिव्स अ फोर्स मतलब क्या, वो रेजिस्ट कर रहा है, मतलब एक कैंटिलीवर बीम एक अगर उस पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा तो वो उसको रेजिस्ट कर सकता है, तो वो एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन दे सकता है एक्स डायरेक्शन में, वो एक वर्टिकल रिएक्शन दे सकता है वाई डायरेक्शन में, और वो मोमेंट भी दे सकता है। तो 3 अननोन रिएक्शन फोर्सेस है मेरा और 3 इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, तो ये डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। इसको हम सीधा सॉल्व कर सकते हैं, हम बहुत बार कर भी चुके हैं। ये वाला, इसको प्रॉप्ट कैंटिलीवर बोलते हैं, एक फिक्स सपोर्ट रहता है और इस कोने में एक रोलर सपोर्ट रहता है। तो इधर हमें कितना इक्वेशंस है, यहाँ पे 3 है फिक्स सपोर्ट पे, और रोलर सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन, सिर्फ वाई डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स देगा, तो हमारे पास 4 रिएक्शन है सॉल्व करने का और मेरे पास 3 ही इक्वेशन है। तो दिस सिस्टम इज 1 डिग्री इंडिटर्मिनेट। इसको हम अभी तक जो मेथड्स हम सीखे हैं उससे हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि एक अननोन ज़्यादा रह जाएगा इक्वेशन से और वो तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। इधर
दिस इज अ फ्रेम स्ट्रक्चर। इसमें यहाँ एक फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पे एक फिक्स सपोर्ट है, और यहाँ पे फ्रेम 3D मतलब 3D ये 2D फ्रेम है, तो इसका भी नंबर ऑफ इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम 3 ही है। और मेरा सपोर्ट रिएक्शन कितना होगा, यहाँ पे एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल एक मोमेंट, यहाँ पे डी पे भी एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एक मोमेंट, तो वी हैव 6 अननोन रिएक्शंस एंड 3 इक्वेशंस। सो दिस सिस्टम इज 3 डिग्री इंडिटरमिनेट। और इसमें 2 हिंज सपोर्ट है। यहाँ पे हिंज सपोर्ट तो मोमेंट नहीं रेजिस्ट कर सकता, यहाँ पे रोटेशन अलाउड है। तो लेकिन यहाँ पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अलाउड नहीं है, मतलब दिस हिंज सपोर्ट कैन प्रोवाइड अ हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड अ वर्टिकल फोर्स। सिमिलरली ये हिंज सपोर्ट भी। तो यहाँ पे 4 अननोन रिएक्शंस है और 3 इक्वेशन है मेरे पास। तो दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो 1 डिग्री इंडिटरमिनेट लाइक दिस प्रोप कैंटिलीवर। तो ऐसे पहले ही एक क्वेश्चन दिया गया जाएगा, सबसे पहले देखना है कि वो इंडिटरमिनेट है या डिटरमिनेट, उसके बाद मेथड डिसाइड करना है कि हम किससे सॉल्व करेंगे। तो अभी इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का सॉल्व करने का मेथड्स हम देखेंगे, क्योंकि डिटरमिनेट का तो देख चुके हैं और वो बहुत डायरेक्ट भी है। सो यहाँ पे 2 टाइप के मेथड होते हैं, फोर्स मेथड्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड कंपैटिबिलिटी मेथड्स और फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। यहाँ पे क्या होता है, क्या करते हैं हम रिडंडेंट फोर्सेस, रिडंडेंसी का मैंने क्या बोला, रिडंडेंसी इज बेसिकली एवरी एक्स्ट्रा सपोर्ट रिएक्शन दैट वी हैव। मतलब इधर इधर मैं बोल सकती हूँ कि ये प्रॉप कैंटिलीवर पे मतलब ये रोलर सपोर्ट पे जो रिएक्शन है वो एक रिडंडेंसी है। या फिर अगर मैं दूसरे एंगल से देखना चाहूँ, सपोज मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि यहाँ पे जो मोमेंट है फिक्स सब एंड पे, उस मोमेंट को मैं रिडंडेंसी बोल सकती हूँ, फिर इसको रखना पड़ेगा। तो फिर मैं इसको मैं बोल सकती हूँ कि दिस इज अ हिंज सपोर्ट प्लस अ मोमेंट रेजिस्टेंस एंड यहाँ पे एक रोलर सपोर्ट है। तो वे किसी एक रिडंडेंट फोर्स, मतलब जितने सारे डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी है उतने सारे रिडंडेंट फोर्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस प्रॉप्ट कैंटिलीवर में हमारा क्या है, 1 डिग्री इंडिटर्मिनेट है, तो आई कैन आइडेंटिफाई 1 रिडंडेंट फोर्स एंड दैट इज अप टू मी, मैं कौन सा चूज करूंगी। मैं इसको भी रिडंडेंट फोर्स बोल सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ कि ये कैंटिलीवर है विथ 1 रिडंडेंट फोर्स एट इट्स टिप। मैं बोल सकती हूँ कि ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे एक हिंज है, यहाँ पे एक रोलर है, और यहाँ पे एक मोमेंट का रिडंडेंट फोर्स, मतलब मोमेंट और फोर्स यहाँ पे इंटरचेंजेबल है, दोनों ही फोर्स रिस्पॉन्स है। तो एक रिडंडेंट मोमेंट यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिडंडेंट फोर्सेज आर चोजन एज अननोन्स and additional equations are obtained by considering the geometric conditions imposed on the deformation of the structure। एग्जाम्पल के बाद ये और क्लियर होगा, लेकिन बेसिकली हम यही करते हैं कि जितने सारे मेरे रिडंडेंट फोर्स है, दैट इज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी अगर जितने भी है, सपोज इट इज 3, तो मुझे 3 रिडंडेंट फोर्स मिलेगा और मैं 3 एडिशनल इक्वेशन मुझे ढूंढना होगा यूजिंग द ज्योमेट्रिक कंडीशंस। कंपैटिबिलिटी कंडीशंस हम किसको कहते हैं, कंपैटिबिलिटी कंडीशन इन अ स्ट्रक्चर इज बेसिकली कि एक स्ट्रक्चर जिस वे में डिफॉर्म करता है उसका डिफॉर्मेशन शुड बी कंटिन्यूअस। ऐसा नहीं हो सकता कि एक इधर सपोज इस पॉइंट का देखोगे तो इस साइड से जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, मैं इस साइड से आऊँगी तो उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, और स्लोप भी। तो वो स्ट्रक्चर डिफॉर्म्स इन सच अ वे दैट द डिस्प्लेसमेंट प्रोफाइल एंड द स्लोप प्रोफाइल दोनों ही कंटिन्यूअस होना है। तो उस वैसे कंडीशन से हमें ऐसा ही मतलब फोर्स मेथड में इट इज़ पॉसिबल कि रिडंडेंट फोर्सेस रहेगा, तो हम ऐसे ढूंढ सकते हैं जितने सारे डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी है उतने सारे एडिशनल रिएक्शन इक्वेशन हम ढूंढ सकते हैं ड्यू टू दिस कंपैटिबिलिटी कंडीशंस। और इसमें मतलब फोर्स मेथड्स बहुत सारे मतलब टाइप्स के होते हैं। वन इज द मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन जो हम देखेंगे आज। देयर आर सम अदर मेथड्स लाइक वर्चुअल वर्क और यूनिट लोड मेथड जो हम थोड़ा ब्रीफली देखेंगे फॉर द मैक्सवेल बेटिस थ्योरम। देयर इज अ स्ट्रेन एनर्जी मेथड, मिनिमम मेथड ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड। ये सारे मेथड्स में से मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन ही सबसे ज़्यादा यूज होता है एंड इट इज़ अ जनरल वन कि मतलब यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है फोर्स मेथड का डेफिनेशन में उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन ये मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन है। तो वो आता है तो मोस्टली सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगा। एंड डिस्प्लेसमेंट methods are also known as equilibrium methods और stiffness methods। उधर हमारा अप्रोच उल्टा रहता है। उधर हम क्या करते हैं, हम displacements of joints are taken as unknown and equilibrium equations are expressed in terms of these displacements and internal loads, और these equations are solved to give the actual joint displacement from which the redundant forces can be calculated। यहाँ पे हमने क्या किया था, फोर्स मेथड मतलब हमने फोर्सेस को अननोन मान लिया था, उसके बाद हमने कंपैटिबिलिटी कंडीशंस अप्लाई करके वी विल फर्स्ट फाइंड दोज फोर्सेस जिसको हम अननोन माने थे, उसके बाद वी कैन सॉल्व द एंटायर स्ट्रक्चर। और यहाँ पे हम किसी किसी जॉइंट्स पे डिस्प्लेसमेंट को अननोन ले लेते हैं और इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करते हैं।
जब इक्विलिब्रियम इक्वेशन और कंपैटिबिलिटी कंडीशंस में बेसिक डिफरेंस यही है कि मतलब एक स्ट्रक्चर का तीन सेट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस होता है, all three sets which must be satisfied. Equilibrium equations obviously you know what that means कि वो स्ट्रक्चर स्टेबल होना चाहिए, कि मतलब सारे फोर्सेस इन एनी डायरेक्शन मस्ट एड अप टू जीरो, मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट मस्ट एड अप टू जीरो, दोज आर द इक्विलिब्रियम इक्वेशंस. कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस क्या है कि स्लोप प्रोफाइल, डिस्प्लेसमेंट प्रोफाइल, द रिस्पॉन्स ऑफ अ स्ट्रक्चर मस्ट बी कंटिन्यूअस, कंपैटिबल इन अदर वर्ड्स. और एक टाइप का होता है कंस्टिट्यूटिव रिलेशंस, विच इज बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. स्ट्रेस के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा फोर्स रिस्पॉन्स है और स्ट्रेन के साथ डिस्प्लेसमेंट रिस्पॉन्स है. तो हम ऐसे क्लास 12 में पढ़े ही है कि स्ट्रेस इज यंग्स मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन. तो दैट यंग्स मॉड्यूलस इज अ कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी, वो स्ट्रक्चर का मटेरियल प्रॉपर्टी होता है. The Young's modulus, Poisson's ratio, ऐसे Young's modulus is one that we have already studied. ऐसे constitutive मतलब प्रॉपर ऐसे और बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉपर मैट्रिक्स होता है. इट्स नॉट ऑलवेज जस्ट अबाउट वन क्वांटिटी, वो बाद में देखेंगे हम. लेकिन इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस एंड कॉन्स्टिट्यूटिव रिलेशनशिप्स कनेक्टिंग द टू. इक्विलिब्रियम इज रिलेटेड टू फोर्स, कंपैटिबिलिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूटिव कनेक्ट्स द टू. ये तीनों ही सेटिस्फाई होना चाहिए फॉर अ स्ट्रक्चर. तो फॉर एनी स्ट्रक्चर वी हैव ऑल थ्री ऑफ दीज एट आवर डिस्पोजल. तो हमने फोर्स मेथड में फोर्सेस को अननोन माना और कंपैटिबिलिटी कंडीशंस यूज किया, और डिस्प्लेसमेंट मेथड में हमने कुछ डिस्प्लेसमेंट्स को अननोन माना और इक्विलिब्रियम इक्वेशंस यूज किया टू सॉल्व द डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट. उसके बाद रिटर्नेंट फोर्स मिल जाएगा. ये मेथड हम अभी नहीं देख रहे हैं, वो हम आई थिंक वीक 9 से है. वीक 9, 10, 11, 12 आर अबाउट दैट. इस वीक और अगले अगले वीक हम फोर्स मेथड्स ही देखेंगे. और इसके तीनों मेथड है जो तीनों ही हमें मतलब इंपॉर्टेंट है फॉर दिस सिलेबस. मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड एंड स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड. वो तीनों के लिए आई थिंक वीक 10, 11 एंड 12 आई थिंक आर डेडिकेटेड टू दीज ईच. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. पर इस फोर्स मेथड में वी आर मेनली लुकिंग एट द मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन. तो यहाँ पे एक इसमें टेबल फॉर्म में इसका डिफरेंसेस समराइज किया है कि फोर्स मेथड में अननोन्स आर टेकन एज इंटरनल मेंबर फोर्सेस और रिएक्शंस. डिस्प्लेसमेंट मेथड में अननोन्स आर टेकिंग एज जॉइंट डिस्प्लेसमेंट्स. यहाँ पे टू फाइंड अननोन्स कंपैटिबिलिटी कंडीशंस आर रिटन. और कितने सारे कंपैटिबिलिटी कंडीशन लिखना होगा हमें. नंबर ऑफ इक्वेशंस नीडेड इज डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी. क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इज द नंबर ऑफ रिडंडेंट फोर्सेस दैट वी नीड टू फाइंड आउट. जितने सारे अननोन्स हैं हमें उतने इक्वेशंस चाहिए तो ही हम सॉल्व कर पाएंगे. तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी जो अभी तक हम देखे हैं. और इधर होता है कि टू फाइंड अननोन्स जॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशंस आर रिटन. और यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशंस नीडेड है डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी. ये काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी इज नॉट इक्वल टू स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, उसको हम बाद में देखेंगे. बट दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू द मतलब कितने सारे जॉइंट्स हमारे अननोन, कितने सारे जॉइंट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास अननोन है, उसके साथ रिलेटेड है. सो वी लुक एट दैट लेटर, बट डो नॉट कंफ्यूज डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी एंड डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी. और यहाँ पे ऑब्वियसली अगर डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कम है तो हम ये मेथड प्रेफर करेंगे फोर्स मेथड को, क्योंकि कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा जितने कम इक्वेशन है. सो दिस मेथड इज सूटेबल व्हेन ds इज लेस देन dk, और दिस मेथड इज सूटेबल व्हेन ds इज ग्रेटर देन dk. नाउ वी फर्स्ट लुक एट बेट्टीज लॉ. इधर क्या बोलता है कि in any structure the material of which is linear elastic and follows Hooke's law. वो अभी तक हम सारे मान रहे हैं कि linear elastic और follows Hooke's law. मतलब क्या है कि stress is directly proportional to strain, that is sigma is proportional to epsilon, और वही constant of proportionality यहाँ पे Young's modulus होता है. तो अभी तक हमने वो मान लिया क्योंकि linear elastic नहीं है तो method of superposition is not applicable, और superposition हम already use कर चुके हैं. एंड सपोर्ट्स आर अनयील्डिंग. वो भी यहाँ पे हमने जो सपोर्ट आज तक देखा है, जैसे हिंज सपोर्ट इज सपोज टू गिव एक वर्टिकल फोर्स, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स, और उस इट शुडंट मूव, राइट. अगर वो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और वर्टिकल रिएक्शन दे रहा है तो उसका उस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है.
तो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय सपोर्ट इज अनयील्डिंग। अब ये हिंज सपोर्ट थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन देगा पर थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली मूव भी करेगा, तो फिर हम बोलेंगे द सपोर्ट इज यील्डिंग, लाइक इट इज गिविंग सम रिएक्शन बट इट इज ऑल्सो मूविंग, तो उसको यील्डिंग बोलेंगे। बट इधर एजम्पशन है कि द सपोर्ट इज अनयील्डिंग, जो हम अभी तक देख चुके हैं। एंड द टेम्परेचर इज कांस्टेंट विच इज ऑल्सो एज्यूम्ड। ये बेसिकली इनहेरेंट एजम्पशंस है। अभी तक हम जो भी पढ़े ये चारों ही इनहेरेंट एजम्पशंस है। And what does this theorem say? The external virtual work done by a P system of forces, जैसे P1, P2, P3, P4 का कोई भी अरेंजमेंट हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, and force also includes moment. Force does not just mean force. So the external virtual work done by a P system of forces during the distortion caused by Q system of forces, यहाँ पे Q1, Q2, Q3 का कुछ भी होगा, is equal to the external virtual work done by the Q system of forces during the distortion caused by the P system of forces. इसका मतलब क्या है कि एक केस हम कंसिडर करेंगे कि P system of forces लग रहा है, any combination of forces and moments जिसको हम एट अ टाइम काम कर इसके स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाइड है, हम बोलेंगे दैट इज अ पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो उसके वजह से स्ट्रक्चर का कुछ डिफॉर्मेशन होगा, सारे मतलब पूरा डिफॉर्मेशन होगा, मतलब पूरा डिफॉर्मेशन प्रोफाइल होगा, वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स पूरा होगा। तो दैट इज माई केस वन। जैसे मैं बोलूँगी कि यहाँ पे सपोज P1 P2 है, कैपिटल Y1 एंड कैपिटल Y2 आर द डिस्प्लेसमेंट एट दीज टू पॉइंट्स। सारे पॉइंट्स पे कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट है। सपोज कैपिटल Y सिस्टम ऑफ डिफॉर्मेशन है ये। और एक केस में देखूंगी जहाँ पे Q सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स एंड मोमेंट्स अगेन, एंड उधर स्मॉल वाई सेट ऑफ मतलब स्मॉल वाई ऑफ एक्स प्रोफाइल है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि P virtual work done by P system of forces over the displacement caused by the Q system of forces। मतलब यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स पे P अप्लाइड होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स में मैं Q अप्लाई करूँगी, तो जितना डिस्प्लेसमेंट होगा मुझे निकालना है। सो कॉरेस्पॉन्डिंग टू P1 हियर आई हैव स्मॉल y1 हियर, कॉरेस्पॉन्डिंग टू P2 हियर आई हैव स्मॉल y2 हियर। सपोज यहाँ पे एक मोमेंट होता, सपोज देयर वॉज अ मोमेंट एनीवेयर हियर m1, तो या फिर P3 बोलो उसको क्योंकि हम P सिस्टम फोर्स देख रहे हैं, देन आई वुड नीड द कॉरेस्पॉन्डिंग स्लोप एट दैट पॉइंट इन दिस सिस्टम। Q1 Q2 की वजह से एक स्लोप और डिफ्लेक्शन का एक सिस्टम है मेरे पास, तो इधर यहाँ पे कहीं भी मोमेंट अप्लाई होता तो उस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे मोमेंट स्लोप निकलना होता। एंड द वर्चुअल वर्क डन विल बी P1 इंटू स्मॉल y1 प्लस P2 इंटू स्मॉल y2। सिमिलरली कोई भी मोमेंट होता तो वो P3 इंटू दैट थीटा वन वो हमें लेना होता। सो दैट इज द ऐड करके हमें वर्चुअल वर्क मिलेगा ड्यू टू P सिस्टम ऑफ फोर्सेस ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशन ड्यू टू Q सिस्टम ऑफ फोर्सेस। एंड इसको इक्वल क्या होना है, उल्टा, मतलब जस्ट सी द रिवर्स कि यहाँ पे मैं Q सिस्टम या Q का फोर्सेस जहाँ पे भी है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे डिफॉर्मेशन देखना है फॉर दिस सिस्टम। सो यहाँ पे Q1 अप्लाइड है और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट इन दिस सिस्टम इज कैपिटल Y1। यहाँ पे Q2 है, द डिफॉर्मेशन हियर इज कैपिटल Y2। यहाँ पे कोई मोमेंट हो सकता है, यहाँ पे कुछ अलग, दिस इफ दिस लोकेशन पे कोई Q3 होता तो यहाँ का कैपिटल Y3 भी मुझे निकलना होता। एंड द टोटल वर्चुअल वर्क डन बाय द Q सिस्टम ऑफ फोर्सेस ऑन दिस प्रोफाइल इज कैपिटल Q1 इंटू कैपिटल Y1 प्लस Q2 इंटू कैपिटल Y2। एंड बेटीज लॉ स्टेट्स कि वर्चुअल वर्क ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो P1 y1 प्लस P2 y2 इज Q1 y1 प्लस Q2 y2। ये y अलग है, स्मॉल y और कैपिटल y में कंफ्यूज नहीं करना है। सो हियर हमारा क्राइटेरिया क्या क्या है, मतलब क्या क्या चाहिए मुझे, एक P सिस्टम ऑफ फोर्सेस चाहिए। सिस्टम ऑफ फोर्सेस मतलब सेट ऑफ फोर्सेस, मतलब द मैग्नीट्यूड एंड द लोकेशन ऑफ द फोर्स और द मोमेंट। तो ऐसा एक सिस्टम है मेरे पास जिसको मैं कैपिटल P बोलूँगी, ऐसा और एक सिस्टम है जिसको मैं Q बोलूँगी, और दोनों के वजह से मुझे डिस्प्लेसमेंट एंड स्लोप प्रोफाइल पूरा निकालना है। अब पूरा निकालना का ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितने पॉइंट्स पे फोर्स रहेगा बस उसी पॉइंट्स में मुझे कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा दूसरा सिस्टम में। लेकिन बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज एक P सिस्टम ऑफ फोर्स है, उसके सारे डिस्प्लेसमेंट स्लोप मुझे पता है। एक Q सिस्टम ऑफ फोर्स है, उसके भी सारे डिस्प्लेसमेंट और स्लोप मुझे पता है, और दोनों को इंटरचेंज करना है। P सिस्टम ऑफ फोर्स के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगी Q सिस्टम का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा एंड वाइसी वर्सा, तो और दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो वी विल गेट वन एडिशनल इक्वेशन बेसिकली यहाँ पे। तो एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक कैंटिलीवर बीम है, हाँ, यहाँ पे कैंटिलीवर बीम है मेरे पास, एंड क्या बोला है कि डेल्टा 2 इज अ डिफ्लेक्शन अंडर एक्स
ड्यू टू लोड W1 एट वाई, ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है, और मेरे पास दो लोडिंग कंडीशन है। एक है इस कोने वाई पे W1 है, ये एक लोडिंग कंडीशन है, और उसके वजह से क्या बोला है कि डेल्टा टू इज द डिफ्लेक्शन एट एक्स ड्यू टू लोड W1 एट वाई। तो यहाँ पे मैं वाई W1 दे रही हूँ, तो यहाँ पे एक्स पे मेरा डेल्टा टू डिफ्लेक्शन आ रहा है। और यहाँ पे और एक दूसरा सिस्टम ऑफ फोर्स है कि इफ़ आई अप्लाई अ फोर्स W2 एट एक्स देन वाई पे डेल्टा वन आ रहा है मेरा डिफ्लेक्शन। तो they have asked that the ratio of delta 1 by delta 2, this is a direct application। यहाँ पे क्या W1 यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ मैं, तो इधर क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डेल्टा वन, राइट। सो W1 इक्वल टू W2 इस W1 को डेल्टा टू के साथ नहीं मल्टीप्लाई करना है, W1 हैज टू बी मल्टीप्लाइड विद द डिफ्लेक्शन इन द अदर सिस्टम ऑफ फोर्सेस एट द सेम पॉइंट। क्योंकि वर्क क्या होता है, वर्क इज बेसिकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम पॉइंट में होना चाहिए, बिकॉज इट इज बेसिकली एक फोर्स जब एक डिस्प्लेसमेंट के थ्रू अंडरगो करता है, तब मल्टीप्लाइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वी गेट द वर्क। सो यहाँ पे इमेजिन करो कि दिस इज द फोर्स W1 दैट इज अंडरगोइंग दिस डिफ्लेक्शन डेल्टा वन। तो W1 इंटू डेल्टा वन इज द वर्चुअल वर्क ड्यू टू दिस फोर्स, और इस फोर्स के लिए वर्चुअल वर्क इज W2 इंटू डेल्टा टू। So delta 1 by delta 2 ratio we get as W2 by W1. This was a direct application. इधर और एक है, the beam shown in figure carries load of 30 kilonewton and 40 kilonewton at x and y respectively, और यहाँ पे z पॉइंट पे डिफ्लेक्शन 8 mm का हो रहा है। तो यहाँ पे टू प्रोड्यूस डिफ्लेक्शंस ऑफ 8 mm and 5 mm at x and y respectively, the load required at z would be, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हम लीनियर सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम अभी x और y का कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं देख रहे हैं, हम एक सिचुएशन कंसिडर करेंगे जहाँ पे x पे लोड है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग करेंगे जहाँ पे z पे लोड है। तो x पे अगर जब x पे 30 किलोन्यूटन है, देखो यहाँ पे बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन हम यहाँ पे नहीं अप्लाई कर रहे हैं, बट दिस इज सिंस इज एन इलास्टिक मटेरियल, रेस्पॉन्स कैन बी एडेड अप। यहाँ पे z पे अगर मैं कोई मतलब फोर्स दे रही हूँ WZ, जो पूछा है कि टू प्रोड्यूस डिफ्लेक्शन ऑफ 8 mm हियर एंड 5 mm हियर कितना लोड चाहिए मुझे, तो मैं बोलूँगा, और हमें पता है कि ये x पे जो basically the P system of forces is this 30 kilonewton and 40 kilonewton. So and the Q system of forces is the WZ. तो P system of forces के लिए जब P system of forces क्या है, x पे 30 किलोन्यूटन, y पे 40 किलोन्यूटन, और कॉरेस्पॉन्डिंग टू द उधर z पे कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, 8 mm का। तो हम यहाँ पे करेंगे, और यहाँ पे बोल रहा है कि जब हम z पे फोर्स देंगे तब आई नीड अ डिफ्लेक्शन ऑफ 8 mm हियर एंड 5 mm हियर। तो फिर WZ को मुझे मल्टीप्लाई करना, WZ इज नॉट अप्लाइड हियर, Q सिस्टम ऑफ फोर्स ड्रॉ नहीं किया गया, बट इमेजिन अ Q सिस्टम ऑफ फोर्सेस जहाँ पे सिर्फ Z पे एक लोड है WZ, और वहाँ पे x और y पे 8 और 5 mm डिफ्लेक्शन है। तो ड्यू टू P सिस्टम ऑफ फोर्सेस मेरा वर्चुअल वर्क कितना होगा, 30 इंटू 8, क्योंकि Z सिस्टम ऑफ फोर्स, जो Q सिस्टम ऑफ फोर्स है, वहाँ पे x में 8 आना चाहिए, यहाँ पे बोला है। तो 30 इंटू 8 प्लस 40 इंटू 5, ये मेरा वर्चुअल वर्क है ड्यू टू P सिस्टम ऑफ फोर्सेस। और ड्यू टू Q सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या है, Q सिस्टम ऑफ फोर्सेस ओनली अ WZ एट द पॉइंट Z, और इधर उसका कॉरेस्पॉन्डिंग डिफ्लेक्शन आ रहा है 8 mm। सो WZ इंटू 8 इज 30 इंटू 8 प्लस 40 इंटू 5, वहाँ से WZ आ रहा है 55 किलोन्यूटन। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली क्या है, द P सिस्टम ऑफ फोर्स इज अ फोर्स एट x एंड अ फोर्स एट y, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग z पे हमारा कैपिटल Y1 आ रहा है जो 8 बोल दिया है, एंड द Q सिस्टम ऑफ फोर्सेस इज जस्ट वन फोर्स एट द पॉइंट z। उधर हमारा x स्मॉल y1 और स्मॉल y2 यहाँ पे प्रोवाइडेड है 8 और 5, तो डायरेक्टली थ्योरम अप्लाई करके यही आ रहा है। एंड द मैक्सवेल-बेटिस रेसिप्रोकल थ्योरम इज अ स्पेशल केस। यहाँ पे क्या है कि P इक्वल टू Q, ये P सिस्टम ऑफ फोर्स और Q सिस्टम ऑफ फोर्स अगर इक्वल हो जाए, एक फोर्स होना चाहिए उसका कोई मतलब नहीं, P सिस्टम इज इक्वल टू Q सिस्टम, मतलब P में जितने सारे फोर्सेस थे Q सिस्टम में उतने ही सारे फोर्सेस है। सो फॉर एग्जांपल
In a beam structure, the deflection at any point D due to load W at any other point C is the same as the deflection at C due to the same load applied at D. इसका मतलब सिंपल टर्म्स में है कि यहाँ पे दो पॉइंट लेना है C एंड D. यहाँ पे मैं C पे W अप्लाई करूँगी तो D पे जो डिफ्लेक्शन आएगा, मैं D पे सेम फोर्स अप्लाई करूँगी तो C पे इक्वल डिफ्लेक्शन आएगा, क्योंकि हम वर्चुअल प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क से हमारा यही आएगा. यहाँ पे क्या आएगा, W अगर सपोज मैं पहले मान नहीं रही कि डेल्टा सी इज इक्वल टू, आई मीन डेल्टा डी और डेल्टा सी इक्वल नहीं है, मतलब आई कैन प्रूव दैट डब्ल्यू हमारा इसको मैं पी सिस्टम ऑफ फोर्स बोलूँगी, इसको क्यू बोलूँगी, तो डब्ल्यू इंटू डेल्टा सी इक्वल टू डब्ल्यू इंटू डेल्टा डी आएगा. तो अगर ये दोनों डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड सेम है, और 3-4 डब्ल्यू भी हो सकता है, जितने भी सारे हों, यहाँ पे 3-4 नहीं हो सकता एक्चुअली. यहाँ पे अगर रेसिप्रोकल डायरेक्टली अप्लाई करना है तो एक ही फोर्स होना है. तो यहाँ पे मैं डब्ल्यू अप्लाई करूँगी, उसके वजह से यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, यहाँ पे डब्ल्यू अप्लाई करूँगी, इसके वजह से यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो इक्वल होना है, क्योंकि ऑब्वियसली डब्ल्यू इंटू डेल्टा सी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू डेल्टा डी. तो डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों कैंसिल आउट करके डेल्टा सी इक्वल टू डेल्टा डी आ जाएगा. और ये दोनों डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट दोनों के लिए अप्लाई हो सकता है. तो इसीलिए ये एक मतलब शॉर्टकट ही बोल सकते हो कि एक इंडिटर्मिनेट बीम तुम्हें दे देगा. ऐसे किसी एमसीक्यू एग्जाम लाइक गेट में बहुत देता है इसका एप्लीकेशन, क्योंकि एक इंडिटर्मिनेट बीम दे देगा तो तुम सीधा में इफ यू डायरेक्टली स्टार्ट टू सॉल्व इट यूजिंग द मेथड्स लाइक मेथड ऑफ कंसिडेंट डिफॉर्मेशन और कोई भी मेथड से या कोई स्टिफनेस मैट्रिक्स में से तुम सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, इट इज़ अ वेरी लेंथी प्रोसेस. इट इज़ ऑल ऑफ देम आर गुड मेथड्स एंड वैलिड मेथड्स, बट दे आर लेंथी. पर एमसीक्यू में ऐसे दे सकते हैं कि ये एक स्टेप में ये हो सकता था, बट इफ यू गो इनटू सॉल्विंग द एंटायर सिस्टम बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. सो कीप एन आई ओपन फॉर दिस. यहाँ पे find the deflection at a distance L/2 from fixed end when load P is applied at free end. यहाँ पे वैसे डिटर्मिनेट बीम में ही बोला है, बट दोनों में एप्लीकेबल है. यहाँ पे एग्जांपल, तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम द डिफ्लेक्शन एट, अभी मैं बी पे पी फोर्स अप्लाई करूंगी, जो मेरा यहाँ पे सी पे जो डिफ्लेक्शन आएगा दैट शुड बी इक्वल टू, मैं सी पे अगर एक ऐसे यहाँ पे मैंने सी पे एक पी फोर्स दिया है, तो यहाँ पे जितना डिफ्लेक्शन आएगा यहाँ पे सी पे उतना ही डिफ्लेक्शन आएगा. तो यहाँ पे उसने पूछा है कि मैं इस कोने पे एक पी दूंगी तो सी पे कितना डिफ्लेक्शन आएगा. तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग दैट आउट, मैं इसको स्विच कर दूंगी. मैं स्विच करके आई विल अप्लाई अ फोर्स पी एट दिस पॉइंट, और फिर हम इस कोने पे डिफ्लेक्शन निकालेंगे. क्यों? क्योंकि टिप पे डिफ्लेक्शन निकालना इज ईजियर. यहाँ पे देखोगे इट इज ईजियर अकॉर्डिंग टू मैक्स. यहाँ पे डेल्टा बी सी इज इक्वल टू डेल्टा सी बी. यहाँ पे मतलब डेल्टा सी बी स्लैश सी इज डिफ्लेक्शन ऑफ बी व्हेन द लोड इज एट सी, एंड डेल्टा सी स्लैश बी इज डिफ्लेक्शन ऑफ सी व्हेन द लोड इज एट बी. जो मैंने समझाया, ये डेल्टा बी स्लैश सी है और ये डेल्टा सी स्लैश बी है. तो मैंने यहाँ पे पी अप्लाई कर दिया, और यहाँ पे तो दीज टू आर एक्चुअली फार्मूलर. जो भी अगर किसी को गेट देना है तो याद रखना, अच्छी बात है कि एक कैंटिलीवर बीम का टिप पे अगर पी लोड अप्लाई किया है तो उसका टिप पे डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है PL³/3EI. ये तुम एरिया मोमेंट थ्योरम से हम पहले निकल भी चुके हैं. एरिया मोमेंट थ्योरम से एक सेकंड में, अभी एक सेकंड में नहीं आएगा, 5 से 10 सेकंड लगेगा करने में. उससे अच्छा इसको याद रख लेना कि कैंटिलीवर बीम का टिप पे अगर एक फोर्स है P और कैंटिलीवर बीम का लेंथ है L, तो फिर उसका टिप पे डिफ्लेक्शन इज PL³/3EI और उसका टिप पे स्लोप इज PL²/2EI. तो यहाँ पे क्या हम कर रहे हैं कि यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे एक फोर्स दे रही हूँ, तो मैं इस पार्ट को पहले कैंटिलीवर बीम मान रही हूँ, दिस पार्ट, जस्ट दिस पार्ट. तो उसका टिप पे डिफ्लेक्शन कितना आएगा, P L/2 क्यूब, क्योंकि इधर कैंटिलीवर बीम का लेंथ इज L/2, P L/2 क्यूब/3EI. EI इज कांस्टेंट. प्लस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक स्लोप है, और इसके बाद सिंस देर इज नो अदर फोर्स हियर, वो जो स्लोप होगा ना, वो स्लोप के साथ ये डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करोगे तो इसको मिल जाएगा ड्यू टू ट्राइंगल. यहाँ पे देखो ये प्रोफाइल ऐसे है, यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है ये डेल्टा सी वाला, दिस इज ड्यू टू, इफ यू ट्रीट दिस पार्ट एज अ कैंटिलीवर, यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन आ रहा है दैट इज ड्यू टू अ कैंटिलीवर काइंड ऑफ बेंडिंग. उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वाला डिफॉर्मेशन होगा दैट इज जस्ट ड्यू टू, यहाँ पे एक स्लोप था and that slope is going to a certain distance, so it will also go down by that distance. तो ट्राइंगल लॉ से हमें पता है कि
delta c into L by 2. The slope is delta c into L by 2 is this distance we are going. So the corresponding distance by tan theta है basically ये, तो ये extra वाला part हमें आ जाएगा. तो delta c slash b is basically p L by 2 cube by 3 ei प्लस ये डेल्टा सी कितना है, कैंटिलीवर का टिप पे हमारा स्लोप आता है पी एल स्क्वायर बाई टू ई आई. तो यहाँ पे एल की जगह एल बाई टू दे देना क्योंकि ऑफ दिस पार्ट इज एल बाई टू. सो पी इंटू एल बाई टू स्क्वायर बाई टू ई आई इंटू एल बाई टू. दिस सेकेंड एल बाई टू इज ड्यू टू दिस लेंथ क्योंकि ये दिस स्लोप इज मूविंग टू दिस डिस्टेंस. सो दिस इज दिस पार्ट. तो ऐड करके हमारा पी एल क्यूब बाई 48 ई आई आ रहा है. This is the displacement at B due to this P force at C. So that will be the same as अगर हम B पे ये P अप्लाई कर रहे हैं तो C पे जितना डिफ्लेक्शन आएगा. तो यहाँ पे हमने 2-3 कॉन्सेप्ट यूज़ किया है. एक तो मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम और दूसरा हमने ये रटा हुआ वैल्यूज़ ये रट लेना अच्छी बात है. एक लिस्ट में बाद में किसी नेक्स्ट लेक्चर में एक लिस्ट में अटैच कर दूंगी सम कॉमन कंडीशंस लाइक कैंटिलीवर बीम का टिप पे फोर्स है या सिंपली सपोर्टेड बीम का सेंटर पे फोर्स है या सिंपली सपोर्टेड बीम में यूडीएल है. इसमें जो फोर्स इसमें इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे स्लोप और डिफ्लेक्शन हम याद रखेंगे तो जल्दी हो सकता है प्रॉब्लम्स. सो दैट इज व्हाट वी यूज्ड हियर. नाउ वी मूव ऑन टू द मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन व्हिच इज अ फोर्स मेथड. आज और in next 2 lectures I think we are talking about force methods. After that we will move on to the displacement methods. So directly जो हमने फोर्स मेथड्स का सबसे पहले देखा है, फोर्स मेथड का डेफिनेशन हमने जो देखा है कि जितने सारे रिडंडेंट फोर्स मेरे पास है इक्वल टू द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, उसको हम अननोन ले लेंगे एंड वी विल अप्लाई द कंपैटिबिलिटी कंडीशंस टू सॉल्व दिस. इज एब्सोल्यूट डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ फोर्स मेथड. एक एग्जांपल्स के थ्रू समझ आएगा दैट दिस इज अ प्रॉप कैंटिलीवर बीम. व्हाट इज अ प्रॉप कैंटिलीवर बीम? देयर इज अ फिक्स सपोर्ट लाइक अ कैंटिलीवर बीम और उसका दूसरा जो फ्री वाला एंड होने वाला था वहाँ पे एक रोलर सपोर्ट दे दो तो दैट इज अ प्रॉप कैंटिलीवर. सो वी कंसिडर अ प्रॉप कैंटिलीवर विद अ यूडीएल. यहाँ पे पूरा लेंथ के ऊपर डब्ल्यू यूनिट पर यूनिट लेंथ है. तो फॉर द प्रॉप कैंटिलीवर मेरा डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी कितना है? देखो यहाँ पे हम बीम को लेके बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स इन एनी 2D स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस इज 3. दैट इज sigma fy is 0, sigma fx is 0 and sigma moment about any one point is 0. लेकिन हम बीम इज एन आइडियलाइजेशन, इज अ स्ट्रक्चरल आइडियलाइजेशन जहाँ पे हम सिर्फ वर्टिकल डिफ्लेक्शन और रोटेशन देखते हैं ना. हम बीम में हम ये एक्शियल मतलब एलोंगेशन या शॉर्टनिंग जो होता है वो हम इग्नोर करते हैं क्योंकि when we talked about idealization of these structural elements हमने क्या बात किया था कि truss element is such an element that only undergoes axial deformation. उधर हम ना transverse deflection देखते हैं ना रोटेशन देखते हैं. बीम इज एन आइडियलाइजेशन जहाँ पे हम सिर्फ ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन और रोटेशन देखते हैं एंड फ्रेम एलिमेंट इज वन जहाँ पे हम एक्शियल डिफॉर्मेशन, ट्रांसवर्स डिफॉर्मेशन, रोटेशन तीनों ही देखते हैं. तो अगर एक बीम को देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि सिंस इफ दिस बीम doesn't undergo axial deformation तो हमें वो डेल्टा एफ सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 वाला जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है दैट इज एज गुड एज नॉन एग्जिस्टेंट क्योंकि मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स भी नहीं दूंगी, मैं हॉरिजॉन्टल डिफॉर्मेशन भी अलाउ नहीं कर रही हूँ बीम में. सो वी कैन से द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस इज बेसिकली 2. दैट इज सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 एंड मोमेंट इज इक्वल टू 0. और यहाँ पे मेरे अननोन रिएक्शंस भी कितने हैं यहाँ पे एट दिस फिक्स एंड सिमिलरली फिक्स, अगर फिक्स सपोर्ट है या हिंज सपोर्ट है वहाँ पे वो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी कंसिडर नहीं करना है बिकॉज वी आर एज्यूमिंग कि हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल डिफॉर्मेशन कुछ भी नहीं है स्ट्रक्चर में. सो इट इज ओनली अ केस ऑफ ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर टू द बीम डिफॉर्मेशन एंड रोटेशन. तो यहाँ पे मेरे अननोन रिएक्शंस कितने हैं? एट दिस फिक्स सपोर्ट देर इज अ फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन एंड देर इज अ मोमेंट. सो यहाँ से 2 आ रहा है और यहाँ पे रोलर सपोर्ट के लिए देर इज 1 वर्टिकल रिएक्शन. सो देर आर टोटल 3 रिएक्शंस एंड 2 इक्वेशंस. सो आई गेट 2 + 1 - 2 = 1. और अगर तुम्हें ये हॉरिजॉन्टल फोर्स वाला कंसिडर करना भी है सो इफ सपोज यू आर एज्यूमिंग कि कुछ भी हो सकता है तो फिर भी मेरा डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी 1 ही आएगा क्योंकि अगर इफ आई एम कंसिडरिंग द हॉरिजॉन्टल पार्ट मैं कैंटिलीवर बीम पे 3 सपोर्ट रिएक्शन मानूंगी. 1 in the horizontal direction, 1 in the vertical direction and 1 rotation, and there will be 1 from this prop. So there are 4 unknowns
and there will be three equations of equilibrium, so that is also one. तुम जिस वे में भी आओगे डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी यहाँ पे वन ही आएगा, तो इसका 1 डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी है, देयरफॉर हमें एक रिडंडेंस फोर्स हमें कहीं पे मानना होगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दिस इज माई ओरिजिनल स्ट्रक्चर, इधर मैं सपोज दिस प्रॉप इसको ये वाला ये जो आर बी है इसको मैं अननोन मान रही हूँ, मेरा रिडंडेंस मान रही हूँ, तो फिर इधर मुझे एक स्ट्रक्चर मिलेगा, उसको हटा दोगे तो मेरे पास एक सिर्फ एक कैंटिलीवर बीम रहेगा, उसको उसको मैं आ रही हूँ, द आरबी इज नीडेड लेटर ऑन, ऐसे आरबी को तुम हटा नहीं सकते, बट सपोज आरबी को मैं मेरा रिडंडेंट फोर्स मान रही हूँ, दैट इज माई चॉइस, सो इट विल लुक लाइक अ नॉर्मल कैंटिलीवर एंड वी विल कॉल दिस द प्राइमरी स्ट्रक्चर कि रिडंडेंट फोर्स को हटा दो। और इधर हम दूसरा, इधर हम ये मोमेंट जो सपोर्ट पे है इसको अगर मैं मेरा रिडंडेंट फोर्स मानूंगी तो दिस विल टर्न इनटू अ हिंज सपोर्ट, अ हिंज सपोर्ट इज अ फिक्स सपोर्ट विदाउट द मोमेंट, यहाँ पे ये प्रॉप रहेगा, तो मैंने यहाँ पे ये मोमेंट को हटा दिया है, देन आई कैन ऑल्सो कॉल दिस एज माई प्राइमरी स्ट्रक्चर इज एम ए इज टेकन एज अ रिडंडेंट फोर्स। और यहाँ पे सपोज मैं पहले ये वाला पार्ट फर्स्ट आई अप्रोच इट दिस वे कि मैं आर बी को रिडंडेंट मानी हूँ, देन देखो आई कैन एक्सप्रेस दिस स्ट्रक्चर, दिस इज माई गिवन, दिस इज द स्ट्रक्चर आई हैव, यहाँ पे एक फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पे एक आर बी है, उसको मैं यहाँ पे ऐसे स्प्लिट कर दूंगी, उसको मैं स्प्लिट कैसे करूँगी, एक पार्ट में मैं रखूँगी the original structure with all the supports except the redundant one and the given loading, तो यहाँ पे मैं कैंटिलीवर रखूंगी विद द यूडीएल, लेकिन यहाँ पे आरबी को हटा दिया मैंने, और मैं और एक पार्ट में जो स्प्लिट करूंगी उधर द सपोर्ट विल रिमेन द सेम एंड द आरबी विल रिमेन बट द लोडिंग विल नॉट रिमेन। बेसिकली इन यहाँ पे दिस इज वेयर वी आर अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन, कि ऐसे मैं स्ट्रक्चर को स्प्लिट कर रही हूँ कि एक में बस गिवन लोडिंग है, एक में बस ये रिडंडेंट फोर्स है एंड सपोर्ट, सो मतलब सपोर्ट रिएक्शंस रिमेन द सेम, इस दोनों को मैं ऐड करूंगी तो आई विल गेट बैक द एक्चुअल स्ट्रक्चर। एक्चुअल स्ट्रक्चर में दिस एक्ट्स एज आरबी, मतलब सी दिस एक्चुअल स्ट्रक्चर दिस दैट वी हैव ड्रॉन हियर दिस इज इक्विवेलेंट टू द गिवन स्ट्रक्चर, ये समझना जरूरी है कि अब इफ यू रिप्लेस अ प्रॉप बाय आर बी नथिंग चेंजेस, इट इज माई ओरिजिनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैंने एक प्राइमरी स्ट्रक्चर लिया है जहाँ पे मैं वो रिडंडेंट फोर्स को हटा दूंगी और एक में रखूंगी जहाँ पे सिर्फ रिडंडेंट फोर्स रहेगा और कोई लोड नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी पे एक अनयील्डिंग सपोर्ट है, अनयील्डिंग सपोर्ट मतलब क्या, वो मूव नहीं करेगा, दैट इज गिविंग अ वर्टिकल फोर्स एंड इट कैन नॉट मूव इन द वर्टिकल डायरेक्शन, दैट इज व्हाट वी नो अबाउट अ रोलर राइट, वो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेस नहीं हो सकता है। तो मेरे पास क्या इक्वेशन आएगा यहाँ पे कंपेटिबिलिटी का, यहाँ पे मेरे पास ये है ना, मैं इसके लिए मैं इम्पोज करूँगी कि इन दिस स्ट्रक्चर मेरा जितना डिफॉर्मेशन आएगा एट दिस पॉइंट बी, इस स्ट्रक्चर में जो डिफॉर्मेशन आएगा एट दिस पॉइंट बी, दोनों को ऐड करके जीरो करना है, सो नेट वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट बी हैज टू बी जीरो, दिस इज माई कंपेटिबिलिटी कंडीशन। तो यहाँ पे अभी प्रॉप कैंटिलीवर के एंड पे टिप पे फोर्स रहता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट एट दिस टिप इज पी एल क्यूब बाई 3 EI, तो यहाँ पे आर ई एल क्यूब बाई 3 EI इज दिस पार्ट ड्यू टू दिस, एंड कैंटिलीवर बीम पे अगर ऐसा यूडीएल है तो उसका टिप पे डिफ्लेक्शन होता है डब्ल्यू, यहाँ पे डब्ल्यू एल टू द पावर 4/8 EI, ये भी एक वैल्यू जो याद रखना चाहिए, मैं लिस्ट दे दूंगी बाद में। सो देर इज एंड वाई इज एल टू द पावर 4, यहाँ पे यूनिट का भी देख लेना कि डब्ल्यू इज बेसिकली न्यूटन पर मीटर, so that is being multiplied by L to the power 4 and reaction is just Newton, so reaction is being multiplied by L cube, remember that। so यहाँ पे इसके वजह से ये यूडीएल नीचे की तरह है, दिस यूडीएल इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसके वजह से मेरे नीचे जो डिफ्लेक्शन आएगा टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन विच आई एम अज्यूमिंग टू बी पॉजिटिव, वो है डब्ल्यू एल टू द पावर 4/8 EI, एंड यहाँ पे आर बी के वजह से मैंने माना है कि आर बी इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में मानती तो यहाँ पे प्लस आ जाता, मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में माना है तो इट इज गेटिंग डिस्प्लेस अपवर्ड्स बाई आर बी एल क्यूब बाई 3 EI, तो दोनों को मैं यहाँ पे इक्वल टू जीरो करूँगी क्योंकि ये यूडीएल के वजह से ये पॉइंट जितना नीचे जाएगा ये प्रॉप रिएक्शन की वजह से उसको उतना ही ऊपर जाना है ताकि बी पॉइंट नीचे डिफ्लेक्ट ही ना हो along the vertical direction because there is a support here। तो मैं इसको जीरो कर रही हूँ, मेरे यहाँ से आर बी का वैल्यू आ गया 3/8 WL, W is of the units Newton by meter and length is meter, so RB is of the units Newton, that is how it should be। अब मेरे पास ये आर बी आ गया और मेरे पास आर बी आ गया, तो दिस इज बेसिकली अगेन ये डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर बन गया, क्यों, क्योंकि अभी आर बी को तुम्हें यू डोंट हैव टू ट्रीट इट एज अ सपोर्ट रिएक्शन, यू कैन जस्ट ट्रीट इट एज अ फोर्स,
If you treat it as an applied force, तो this is just a cantilever beam with a UDL and with a force at its tip. तो मेरे पास तीन ही अननोन है और तीन इक्वेशन है. Now RB is known. The bending moment and shear force diagram can be drawn by superimposing. मतलब अभी भी मैं सुपर इम्पोजिशन यूज कर सकती हूँ कि मैं इस स्ट्रक्चर के वजह से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करूंगी और इस स्ट्रक्चर के वजह से ड्रॉ करूंगी और मैं दोनों को बस ऐड कर दूंगी. एल्जेब्रिकली ऐड करना है, प्लस माइनस याद रखना है, बट हमें वी कैन ऐड. सो यहाँ पे लीनियर, यहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम हमें पता है कैसा होता है. अभी तक तो ये याद हो जाना चाहिए इसका नेचर कैसे होता है कि इफ देर इज डब्ल्यू ओवर अ लेंथ एल, यहाँ पे सपोर्ट पे रिएक्शन आएगा डब्ल्यू एल एंड दिस विल बी पॉजिटिव क्योंकि ये इन द अपवर्ड डायरेक्शन है और लेफ्ट साइड से आएंगे तो अपवर्ड इज पॉजिटिव. सो डब्ल्यू एल एंड दिस विल गो टू जीरो हियर क्योंकि फ्री एंड पे शेयर हैज टू बी जीरो. इसको फ्री एंड देख रहे हैं अभी हम क्योंकि यहाँ पे हमने वो सपोर्ट को हटा दिया है. तो दिस इज द शेयर फोर्स कंपोनेंट फ्रॉम दिस पार्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर. एंड इधर जो दूसरा वाला है स्प्लिट करके मेरा दूसरा वाला पार्ट है कि यहाँ पे एक आर बी है. तो दिस विल बी जस्ट बी ऐसा ऐसे यूनिफॉर्म डायग्राम होगा क्योंकि यहाँ पे मैंने आर बी दिया है 3/8 डब्ल्यू एल. तो यहाँ पे फोर्स रिएक्शन भी आएगा नीचे की तरफ 3/8 WL. तो since there is no applied load in this zone, यहाँ पे shear force diagram straight line ही होगा parallel to the x axis. और ये माइनस है क्यों? क्योंकि ये नीचे की डायरेक्शन में है. If you come from the left side, the reaction is pointing downwards, so that is negative shear force. And similarly इस side से आओगे, we know that if coming from the right side, upward shear is negative. तो मेरे पास ये आ गया and you will just add these two. यहाँ पे मेरा ये WL था, ये 3/8 WL था. So this is 5/8 WL positive and this part is negative. We get this diagram. This is the overall shear force diagram of this prop cantilever. And bending moment diagram को भी हम similarly superimpose कर सकते हैं. Due to UDL, we know that we get a parabolic profile. And why is it negative? Because this is a hogging moment. Hogging moment in cantilever beam पे तुम downwards force दोगे तो the profile is hogging and वो negative है from the sign convention that we have practiced earlier. और इधर एक पॉइंट पे टिप पे ऐसा लोडिंग है तो इट विल बी पॉजिटिव एंड इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. वी नो दैट यूडीएल के वजह से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 2 डिग्री पैराबोला होता है, सिंगल पॉइंट लोड की वजह से लीनियर होता है. एंड वी कैन ऐड दिस टू. देखो अब यहाँ पे ये नेचर का हमें एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है क्योंकि दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव एंड वी डोंट एग्जैक्टली नो द वैल्यूज ऑफ द दिस पैराबोला, राइट. हम हर पॉइंट में निकलने नहीं वाले हैं. सो दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव आइडिया कि यहाँ पे मतलब ये कोने, इस कोने पे और इस कोने पे तुम पॉइंट निकाल सकते हो. दिस इज अ रिप्रेजेंटेटिव कि ऐसा टाइप का पैराबोला आएगा बिकॉज इफ यू ऐड अ पैराबोला इन अ स्ट्रेट लाइन यू विल ऑब्वियसली एंड अप विद अ पैराबोला. दिस इज हाउ वी अप्लाई दिस मेथड. और एक मेथड मतलब हम दूसरे वे में देखेंगे इन अ डिफरेंट अप्रोच कि हम अगर ये मोमेंट को मान लेते हैं अननोन तो यहाँ पे मैंने मेरा मोमेंट को रिडंडेंट फोर्स मान लिया है एंड आई विल ट्रीट दिस एज अ सिंपली सपोर्टेड बीम. तो यहाँ पे थीटा ए, यहाँ पे दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ ये वैल्यूज जो याद रखने का. बेसिकली देखो क्या क्या वैल्यूज याद रखना है. देर आर टू इम्पॉर्टेंट बाउंड्री कंडीशन ऑफ बीम्स, एक सिंपली सपोर्टेड एक कैंटिलीवर. और देर आर टू काइंड्स ऑफ लोडिंग जो एकदम कॉमन है. एक है यूडीएल ओवर द एंटायर लेंथ ऑफ द बीम जो कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड दोनों पे दे सकते हो. एंड अगर पॉइंट लोड देना है तो सिंपली सपोर्टेड में हम सेंटर पे देंगे या कैंटिलीवर पे हम कोने पे देंगे एट द टिप. सो दोज 4 आर द बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्लोप्स एंड डिफ्लेक्शंस एट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर. कैंटिलीवर के लिए वी नीड द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट द टिप एंड सिंपली सपोर्टेड के लिए वी नीड द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट द सेंटर. And at these ends, sorry, slope at the center will be 0. So for simply supported beam we need the deflection at the center and the slope at the corners. जो अगर सिमेट्रिक मान रहे हैं तो दोनों साइड पे इक्वल होगा. सो दिस वैल्यू अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर ऐसे डब्ल्यू यूडीएल होता है तो द स्लोप इज WL³/24 EI. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने इसको एक मोमेंट यहाँ पे मान लिया है. सो फर्स्ट आई विल स्प्लिट इट इनटू 2 पार्ट्स. एक में मैं ये मोमेंट के बारे में भूल जाऊंगी. आई रिमूव द मोमेंट, आई कीप इट एज अ सिंपली सपोर्टेड बीम अंडर यूडीएल एंड यहाँ पे मैं ये यूडीएल को हटा दूंगी. आई विल ट्रीट इट एज अ सिंपली सपोर्टेड बीम विद द मोमेंट इन द कॉर्नर. तो यहाँ पे ऐसे इसके वजह से आई गेट थीटा ए. और मैं फिर क्या करूँगी, द कंपेटेबिलिटी कंडीशन मेरा क्या होगा कि सिंस एंड ए इज एक्चुअली इन द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज फिक्स्ड दैट ए पे रोटेशन नहीं हो सकता है तो नेट रोटेशन एट ए और द नेट स्लोप एट ए शुड बी 0.
क्योंकि उसी मतलब दैट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग वन राइट। यहाँ पे मोमेंट जो था दैट इज टू एंश्योर कि यहाँ पे स्लोप यहाँ पे रोटेशन ना हो, कैंटिलीवर बीम का फिक्स एंड पे रोटेशन नहीं होता है, दैट इज माई कंपेटिबिलिटी कंडीशन. So theta A due to this loading is WL cube by 24 EI, and due to this MA is MA L by 3 EI. This you have to find out using area moment theorem. I think we have looked at a problem very similar to this, and this is a very common and easy problem to solve using the area moment method. ये moment, this rotation you have to find out using the area moment theorem, and this also if you do not have the value remembered, but this value I would recommend you to remember. So इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे, जीरो करेंगे, तो वी विल गेट एम ए एज माइनस डब्ल्यू एल क्यूब एल स्क्वायर बाई 8. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट एम ए इज जस्ट ऑपोजिट एज वी अज्यूम्ड. हमने ऐसे अज्यूम किया था, लेकिन एम ए विल बी लाइक दिस. हमने क्लॉकवाइज सेंस में अज्यूम किया था, इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज. हम फिर से शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए वी विल जस्ट हम प्राइमरी स्ट्रक्चर को लेंगे. दिस शेयर फोर्स ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम अंडर यूडीएल इज अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, और यहाँ पे एक कोने पे बस मोमेंट है, तो शेयर फोर्स डायग्राम विल बी अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि पहले रिएक्शन फोर्स सॉल्व करना है. टू ड्रॉ द शेयर फोर्स डायग्राम वी हैव टू सॉल्व द रिएक्शन फोर्सेस. इस कोने में एम ए है, तो आर ए यू कैन सी दैट these आर द फोर्सेस दैट यू विल बी गेटिंग, एंड दे विल बी द सेम ऑन बोथ साइड्स, बिकॉज यहाँ पे कोई ट्रांसवर्स फोर्स तो नहीं है अप्लाइड, सो दोनों साइड में रिएक्शन इक्वल होना चाहिए, इक्वल एंड ऑपोजिट. सो दिस इज हाउ वी विल गेट. एंड तो ये टोटल जो स्ट्रक्चर मेरा ओवरऑल है, इन दोनों को ऐड करना होगा. बाय एडिंग आई गेट दिस काइंड, दिस इज अ रिजल्टेंट एसएफडी. एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वी नो दैट सिंपली सपोर्टेड बीम अंडर यूडीएल का ऐसा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है. एंड इफ इस कोने में मैं एक मोमेंट अप्लाई करूंगी, और इस कोने पे कोई मोमेंट नहीं है, तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज देर इज नो अदर लोडिंग इन बिटवीन. दोनों को मैं ऐड करूंगी, तो we don't know how it will look like actually, क्योंकि this is a parabola, we don't, I mean two straight lines we can add physically, to a parabola and a straight line we can't ऐसे देख के ऐड नहीं कर सकते. तो you can leave it like this कि यहाँ पे एक माइनस रहेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा, and this is how the overall nature we can just add them to. सो स्टेप्स हम समराइज करेंगे. तो फर्स्ट स्टेप्स वी समराइज फ्रॉम द बिगिनिंग. फर्स्ट आई विल फाइंड द डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी. आई एज्यूमिंग अभी डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी 0 आ गया तो तुम सीधा सॉल्व कर दोगे लाइक अ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, बट इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई विल चूज स्टैटिकली डिटर्मिनेट एंड स्टेबल प्राइमरी स्ट्रक्चर. यहाँ पे हमने क्या, यहाँ पे स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है. ऐसे मतलब अगर 1 डिग्री इंडिटर्मिनेट है, तो यू कैन ओनली टेक 1 रिडंडेंट फोर्स. तुम 2 ले लोगे तो ये अनस्टेबल बन जाएगा ना, फिर वो मतलब इक्वेशंस विल बिकम मोर देन द नंबर ऑफ अननोन्स, फिर वो अनस्टेबल हो जाएगा. सो आई हैव टू चूज स्टैटिकली डिटर्मिनेट एंड स्टेबल प्राइमरी स्ट्रक्चर बाय टेकिंग जितने भी डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी उतने सारे रिडंडेंट फोर्स को हटा के. Then I will identify the redundance and compute displacement of primary structure subjected to external loading and redundance separately at those points where conditions of compatibility exist. जो हमने किया है, यहाँ पे हमने जहाँ पे मोमेंट लिया था वहाँ पे हमने स्लोप कंपेटिबिलिटी देखा है, और यहाँ पे हमने जब फोर्स को रिडंडेंट माना था तब हमने डिस्प्लेसमेंट कंपेटिबिलिटी देखा है. एंड वी हैव टू सॉल्व द रिडंडेंस यूजिंग कंडीशंस ऑफ कंपेटिबिलिटी, जो डिस्प्लेसमेंट या स्लोप का हो सकता है. एंड देन वी कैन प्लॉट द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड shear force diagram by superimposing the effects of redundance and the given loading on the primary structure. This is called the principle of linear superposition. तो ये बेसिक स्टेप्स है हमारा इसको सॉल्व करने का. वी लुक एट एन एग्जाम्पल. यहाँ पे एक फिक्स्ड बीम है, यहाँ पे दोनों ही साइड फिक्स्ड है. तो दिस इज बेसिकली यहाँ पे एम, तो यहाँ पे फिक्स्ड है, यहाँ पे फिक्स्ड है, तो मेरे कितना डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी होगा. इन अ बीम आई एम नेग्लेक्टिंग ऑल द हॉरिजॉन्टल थिंग्स. सो इस पॉइंट में मेरे 2 रिएक्शन होंगे, एक आर ए और एक एम ए, यहाँ पे आर बी एंड एम बी. सो देर आर 4 अननोन्स एंड देर आर 2 इक्वेशंस. सो इट इज़ 2 डिग्री इंडिटर्मिनेट. अब 2 डिग्री इंडिटर्मिनेट होगा तो मुझे 2 रिडंडेंट फोर्स आइडेंटिफाई करना होगा. दैट मीन हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि बी का जो एम बी और आर बी था, मैंने दोनों को रिडंडेंट मान लिया. तो मेरा प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होगा, इट विल जस्ट बी अ कैंटिलीवर बीम जहाँ पे ए पे सपोर्ट है और बी इज फिक्स्ड, बी इज फ्री, सॉरी, क्योंकि बी का दोनों फोर्स अभी तक हमने हटा लिया है. देन है प्लस, यहाँ पे मैं एक बार आर बी को दूंगी, प्लस यहाँ पे मैं एम बी दूंगी. डोंट गिव आर बी एंड एम बी टुगेदर इन द सेम स्ट्रक्चर, मतलब यू दे सकते हो लेकिन दैट विल बी डिफिकल्ट टू सॉल्व. सो I split this structure into 3 parts. One is the primary structure and
वन ईच फॉर द नंबर ऑफ रिडंडेंट फोर्सेस। एक में मैंने आर बी दिया, एक में मैंने एम बी दिया, एंड सी दिस आर बी एंड एम बी का डायरेक्शंस में एज्यूम कर रही हूँ आर्बिट्ररीली। उस मतलब यू कैन एज्यूम इन एनी डायरेक्शन एंड द साइन ऑफ आर बी एंड एम बी विल कम अकॉर्डिंगली, सेम ही आएगा। मतलब मैंने ऐसे एम बी माना है क्लॉकवाइज सेंस में, और अगर एक्चुअल एम बी एंटी क्लॉकवाइज है तो मेरा नेगेटिव आएगा, और मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज ही एज्यूम करती तो मेरा पॉजिटिव आता। तो सिंस एंड बी इज फिक्स्ड इन एक्चुअल स्ट्रक्चर, हम क्या क्या कंपेटिबिलिटी कंडीशन लगाएंगे। एक, मैं बी पे स्लोप जीरो करूंगी, क्योंकि फिक्स्ड एंड पे स्लोप जीरो होता है, तो थीटा बी इज जीरो एंड डेल्टा बी इज ऑल्सो जीरो, क्योंकि फिक्स्ड एंड में वर्टिकल डिफ्लेक्शन में नहीं होता है। So I have two unknowns RB and MB, and I have two compatibility conditions. So theta B is 0 and delta B is 0. So from that मुझे बेसिकली क्या निकालना है, मुझे यहाँ पे नेट स्लोप निकालना है, यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और दोनों को मैं जीरो करूँगी तो मेरे पास दो इक्वेशन आएगा RB और MB में। मतलब I'll get two simultaneous equations in RB and MB and I can solve them simultaneously. So slope at end B ड्यू टू दिस, इसको मैं स्ट्रक्चर वन बोलूँगी। तो डेल्टा बी वन यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, विल गेट दिस, एंड दीज आर बेसिकली दिस यू हैव टू सॉल्व यूजिंग द टूल्स वी हैव लर्नड अर्लियर। या तो तुम्हें कुछ कुछ वैल्यूज याद है, या तुम एरिया मोमेंट थ्योरम या कुछ भी, मतलब यू कैन यूज द elastic curve method, any method to find out the deflection. This is mainly why, this is one of the reasons why we studied the deflections of beams in details earlier. तो मैं इसके वजह से आई विल फाइंड आउट this is a simple structure, a simple determinate structure with a load at the center. I can find out the theta b1. इधर this is a simple determinate structure with a rb at the tip, इसके वजह से मैं थीटा b2 आएगा, एंड दिस मोमेंट के वजह से थीटा b3 आएगा. सो आई एड द 3 एंड इक्वेट देम टू 0. एड मतलब विथ साइन, यहाँ पे ड्यू टू दिस क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है, ड्यू टू क्लॉकवाइज स्लोप आ रहा है, ड्यू टू दिस एम बी एज वेल क्लॉकवाइज स्लोप आ रहा है, बट ड्यू टू आर बी आई गेट एंटी क्लॉकवाइज स्लोप, एज्यूमिंग जो डायरेक्शन हमने मान लिया है, हमने आर बी ऊपर की तरह मान लिया है, तो उसका स्लोप हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिल रहा है. तो हम एल्जेब्रिकली इसको ऐड करेंगे तो इसका प्लस होगा, 1 का प्लस होगा, 3 का प्लस होगा, लेकिन 2 का माइनस होगा. तो यहाँ से मेरा एक इक्वेशन आ गया जहाँ पे मेरा अननोन है आर बी एंड एम बी. सिमिलरली हमें तीनों साइड से डिफ्लेक्शन निकालना है, डेल्टा b1, डेल्टा b2, डेल्टा b3 तीनों को ऐड करना है विद साइन. तो मेरे पास और एक इक्वेशन आ गया इन आर बी एंड एम बी. तो अब मैं दोनों को साइमल्टेनियस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 3 इसको सॉल्व करना है. तो मेरा आर बी और एम बी सॉल्व हो गया. एम बी इज पी एल बाई 8, आर बी इज पी बाई 2. यहाँ पे और एक अप्रोच हम कर सकते थे कि इस इधर मुझे दो रिएक्शंस को मुझे रिडंडेंट मानना था. तो और एक चीज़ मैं कर सकती थी कि मैं आर बी के जगह मैं एम ए को मान लेती. अगर एम ए और एम बी को मैं अननोन मानती, देन आई कुड कन्वर्ट दिस इनटू अ सिंपली सपोर्टेड बीम लाइक दिस. यहाँ पे इट इज़ अ सिंपली सपोर्टेड बीम विच इज़ माई प्राइमरी स्ट्रक्चर. और फिर एक स्ट्रक्चर आएगा मेरा यहाँ पे रिडंडेंट वाला एम ए जहाँ पे है, प्लस एक आएगा जहाँ पे एम बी है. एंड आई फॉलो, यहाँ पे मेरा कंपेटेबल कंडीशंस क्या आएगा कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि मैंने तो सिंपली सपोर्टेड मान लिया है. बट यहाँ पे मुझे थीटा ए भी जीरो करना है, थीटा बी भी जीरो करना है. दिस इज रियली मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग है. तुम अगर मोमेंट को रिडंडेंट मान रहे हो तो उस पॉइंट का स्लोप को तुम्हें जीरो करना है, और अगर तुम फोर्स को रिडंडेंट मान रहे हो तो उस पॉइंट का डिफ्लेक्शन को जीरो करना है. सो सिंपली दिस इज, यहाँ पे यही किया है कि ड्यू टू दिस प्लस दिस हमारा थीटा a1 प्लस थीटा a2 प्लस थीटा a3 हैज टू बी जीरो. आई गेट वन इक्वेशन इन एम ए एंड एम बी, एंड बी पे भी थीटा b1 प्लस थीटा b2 प्लस थीटा b3 जीरो करेंगे और एक इक्वेशन आ जाएगा. एंड सॉल्विंग देम वी विल ऑफ कोर्स गेट द सेम एम बी वैल्यू जो पहले मिला था, और एक एम ए आ जाएगा. एंड यूजिंग दिस वी कैन सॉल्व, बिकॉज नाउ अब देखो, अब मेरे पास दोनों रिडंडेंट फोर्स का वैल्यू आ गया. सो दिस इज जस्ट अ सिंपली सपोर्टेड स्ट्रक्चर. दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड स्ट्रक्चर विथ एम ए एंड एम बी, दो मोमेंट एज इफ कोने में अप्लाई किया गया है दोनों एंड्स पे. सो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फ्रॉम टू इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आई कैन इजीली सॉल्व आर ए एंड आर बी. यहाँ पे देखो आर बी पी बाई 2 आया है जो यहाँ पे आया था. इधर इन दिस फर्स्ट अप्रोच व्हाट आर वी डूइंग, फर्स्ट अप्रोच में हम एम बी और आर बी को अननोन मान रहे हैं एंड कन्वर्टिंग इनटू अ कैंटिलीवर बीम. और सेकेंड अप्रोच पे हम दोनों मोमेंट को अननोन मान रहे हैं एंड कन्वर्टिंग इनटू अ सिंपली सपोर्टेड बीम. एंड वी विल एंड अप विद द सेम सेट ऑफ आर ए एम बी.
क्योंकि that is that those are the support reactions. So these are this RA and RB will be P/2 each, and MA and MB will be PL/8 each. और ये this was a symmetric structure basically. मिड पॉइंट पे फोर्स अप्लाई किया है, बाउंड्री कंडीशंस भी सिमेट्रिक है. सो these are coming to be equal. अब हम और एक यहाँ पे एक टॉप कैंटिलीवर है विथ अ मोमेंट अप्लाइड. इस कोने पे मोमेंट है, दैट इज एन अप्लाइड मोमेंट. सो यहाँ पे मैं पॉसिबल रिडंडेंसीज क्या देख सकती हूँ. आई कैन रिमूव द प्रॉप. मैं आर बी को मेरा रिडंडेंट मान सकती हूँ और मैं डिस्प्लेसमेंट कंपेटिबिलिटी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ. या फिर मैं, जैसे हमने अभी पहले वाला क्वेश्चन में भी किया था विद यूडीएल, या फिर मैं कर सकती हूँ कि एम बी को मैं मेरा रिडंडेंट मान लूंगी एंड आई कन्वर्ट इट इनटू अ सिंपली सपोर्टेड बीम. और प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होगा. इन द फर्स्ट केस इट विल बी अ कैंटिलीवर बीम विद अ मोमेंट जो मेरा गिवन लोडिंग है, प्लस एक आर बी इन दिस, or else I can do this as एक simply supported beam with one force. एक मोमेंट यहाँ पे है जो अप्लाइड लोड है, अप्लाइड मोमेंट है, और एक एम ए जो मैं रिडंडेंट मान रही हूँ. सो फ्रॉम दैट आई एंड इधर मैं सेकंड वाला करूँगी तो मैं कौन सा कंपेटिबिलिटी कंडीशन लगाऊंगी कि ए पे रोटेशन जीरो है. सो नेट रोटेशन एट ए जीरो, ये मेरा यहाँ पे कंपेटिबिलिटी होगा, और यहाँ पे मेरा कंपेटिबिलिटी होगा कि बी पे डिफ्लेक्शन जीरो है. From that you can solve all the three support reactions RA, MA and RB. And this is another example जो this is I mean propped cantilever with overhang. इसको overhang बोला जाता है. तो इसमें भी what kind हम दोनों type of रिडंडेंस हम मान सकते हैं. एक में मैं इस आर बी को रिडंडेंट मानूंगी तो आई विल अप्लाई कंपेटिबिलिटी कंडीशन कि इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन जीरो है. सो दिस आई एम स्प्लिटिंग इनटू वन कैंटिलीवर बीम विथ यूडीएल एंड वन बीम विथ अ फोर्स एट दिस पॉइंट. बी पे जहाँ पे था वहाँ पे एक आर है. So since at B there is an unyielding support, net deflection at B has to be zero. That is my compatibility condition. और इधर में डिफ्लेक्शन, इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालने के लिए you have to use any of the, I mean you have to use any of the methods we have learned before, elastic curve method या area moment method या conjugate beam method. उससे मुझे इसके वजह मतलब ड्यू टू दिस लोडिंग बी पे कितना डिफ्लेक्शन है आई हैव टू सी, एंड इसके वजह से बी पे कितना डिफ्लेक्शन है आई हैव टू सी, and I'll add them and I'll equate them to 0. So there's only one unknown R, उसको मेरा 95 आ गया मेरे यहाँ पे. तो once I have this, I can just treat this as a cantilever beam with a loading at this point. So then I can solve the RA and MA using the equations of equilibrium. यहाँ पे del sigma Fy equal to 0 and sigma M about any point is 0. So I get the RA and MA values. तो मेरा ये मतलब अब ना मेरा रिएक्शन फोर्स सॉल्व हो गया. then I can draw the BMD and SFD easily. So I hope this method is clear. In the next class we'll look at this method in trusses. So are there any questions? Okay, then I'll end the class. Next class we'll look at this method of consistent deformation in trusses, like how to solve indeterminate truss, because so far we have just looked at determinate trusses. I'm ending the class then.